ममता बनर्जी के खिलाफ सड़कों पर डटे रहेंगे डॉक्टर। They have not been able to provide us enough safety. So why is he telling that we should be getting back to work? जब तक इंसाफ नहीं तब तक ममता सरकार से कोई बात नहीं। Who is he to tell this without providing us the basic things we had demanded? The state government has been telling that they have initiated every step to provide us safety, but I personally and many of us have not seen so many CCTV cameras installed or duty rooms created. We have not witnessed anything. ममता के गिड़गिड़ाने के बाद भी डॉक्टर्स ने काम पर लौटने से आखिर क्यों किया इनकार? If CISF is deployed here, what about the rest of the hospitals? सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन खत्म हो चुकी है और डॉक्टर्स ने वापस काम पर लौटने से इनकार कर दिया है। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से है, जहां पर ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप, मर्डर जैसे जघन्य कांड के बाद अब आर्जिकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का गुस्सा ममता बनर्जी वहां के पुलिस प्रशासन के खिलाफ लगातार फूट रहा है। और आलम यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी अब सैकड़ों जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उन्होंने ममता सरकार को यह साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिलेगा तब तक वो ड्यूटी पर नहीं जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, बड़ी खबर तो यह है कि ममता बनर्जी से बातचीत का न्योता तक ठुकरा दिया गया है। जी हां, स्वास्थ्य विभाग की ओर से 10 डॉक्टर्स के एक प्रतिनिधि मंडल को बातचीत करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने बातचीत का यह न्योता ठुकरा दिया है। और यह साफ तौर पर जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि जिनका हम इस्तीफा मांग रहे हैं वो हमें बातचीत के लिए बुला रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बता दें कि जूनियर डॉक्टर्स का यह कहना है कि जब तक कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देती, स्वास्थ्य मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देती, जब तक कि पुलिस कमिश्नर इस्तीफा नहीं देते, हम काम पर वापस नहीं लौटेंगे। तो इस तरीके से डॉक्टर्स ने किस तरीके से अपना गुस्सा जाहिर किया है ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ, जरा सुनिए। First of all, we are not afraid of adverse reaction at this moment because we are more afraid for our life. We are here. My co-PGT, the second year co-PGT, she has been brutally murdered and raped. And most importantly, we have been demanding justice for her. And next, we have been demanding safety for her. But in today's proceedings and throughout in this 1 month, we are assured that the evidence have been tampered, and we don't even know if justice will be provided to her. And nextly, we have been demanding for our safety. The representation of the state government has been telling that they have initiated every step to provide us safety, but I personally and many of us have not seen so many CCTV cameras installed or duty rooms created. We have not witnessed anything. So, first of all, justice has not been provided. We are not sure who is the culprit. And second of all, they have not been able to provide us enough safety. So, why is he telling that we should be getting back to work? Who is he to tell this without providing us the basic things we had demanded? Which the protest was done, for which we were protesting, that is the justice for Abhaya and also the security and safety of the doctors. Like just now in the Supreme Court it was stated that why aren't the doctors returning to work, although CISF have been deployed here. But RG Kor is not the only hospital in the state. And also if CISF is deployed here, what about the rest of the hospitals?
hospitals. Doctors are getting regular threats. Because we are protesting, we are getting regular threats. We don't know from whom. I mean, I don't want to name, but we are getting regular threats. So tell me, how can we join? We can restart the work if we have such threats coming on regularly upon us. तो डॉक्टर्स लगातार सड़कों पर हैं। ममता सरकार के खिलाफ उनका जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। वो अपने लिए सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। तो वहीं पर स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग भी तेज है। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो 9 सितंबर को सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई थी, उसमें ये कहा था कि 10 सितंबर शाम 5 बजे तक ये डॉक्टर्स जो हैं वो काम पर लौटें। ये सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन थी, लेकिन डॉक्टर्स ने इसे नहीं माना, जिसके बाद अब जो पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री हैं चंद्रिमा भट्टाचार्य, दरअसल उनकी बौखलाहट सामने आई है और किस तरीके से टीएमसी के नेता अब ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी डॉक्टर्स नहीं मान रहे हैं, अब वो कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। तो चंद्रिमा भट्टाचार्य ने भी ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था जिसमें कहा गया था कि आंदोलन कर रहे छात्र शाम 5 बजे तक काम पर लौट आए। उन्हें बातचीत के लिए भी प्रशासनिक अधिकारियों ने बुलाया था, लेकिन वो नहीं आए। उन्होंने राज्य के सर्वोच्च अधिकारी से बात करने से इनकार कर दिया। उन्हें ईमेल तक भेजा गया। आंदोलनकारी डॉक्टर्स की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। किस तरीके से अब ममता सरकार के मंत्री जो हैं उल्टा डॉक्टर्स पर ही हमलावर नजर आ रहे हैं, जरा सुनिए। Today, you all know that yesterday an order was passed by the Honorable Supreme Court of India by a bench presided over by the Honorable Chief Justice, Justice Chandrachud, and in that order, the bench was pleased to direct that the students, the junior doctors who are carrying on the agitation should come back to their services by 5 p.m. today. Honorable Chief Minister and the entire government had waited till 5 p.m. Thereafter, at 5 p.m., our administrative officers, they had already reached this news that the doctors, if they want, 10 of them can come and talk to the supreme authority of the government. Now, at 6:10 p.m., email was sent to them by the Principal Secretary Health, requesting them to come, 10 of them, to come to Novanno and to talk to the supreme authority of the state administration. Till 7:30, our Honorable Chief Minister had waited, but nothing came from the end of the agitating doctors, neither any mail nor any news through any media, telephonic or anything. Therefore, at 7:30, Honorable Chief Minister has left the premises of Novanno, and she has always been requesting the junior doctors to come back to their services, because this is a service for the common people, and therefore the common people should not be deprived. So this is what she had always told them and requested them. But we find that that has not yet been done, and that irrespective of the direction of the Honorable Supreme Court. So this is what we want to say
from the end of the administration that our Honorable Chief Minister has taken all positive steps so that the patients and the healthcare, they need the patients, they need the healthcare, they should not be deprived of that. So she had waited here and left the premises, as I told, at 7:30 p.m. तो डॉक्टर पैच तो आर्जिकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल यानी जहां पर यह जघन्य कांड हुआ वहां के डॉक्टर्स ने साफ इनकार कर दिया है कि जब तक उस पीड़िता को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक उसके परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम काम पर वापस नहीं लौटेंगे। और यही वजह है कि इस केस के विरोध में लगातार जो सैकड़ों जूनियर डॉक्टर्स हैं वो लगातार मार्च कर रहे हैं। और एक और मार्च उनकी तरफ से किया गया जहां पर पुलिस मुख्यालय से स्वास्थ्य भवन की ओर जो है वो मार्च किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो है ये आंदोलनकारी तमाम जूनियर डॉक्टर्स हैं जिन्होंने साफ कह दिया है कि हम जो है अपनी मांगे पूरी होने तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानेंगे जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। पीड़िता को न्याय मिलने पर ही हम ड्यूटी पर वापस लौटेंगे। हालांकि जैसा कि मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले प्रदर्शनकारी जो ये डॉक्टर्स हैं इन्हें 5 बजे तक काम पर लौटने के लिए कहा था और ऐसा ना करने पर उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं की जाएगी, यानी कोई दंड उन्हें नहीं दिया जाएगा, उनका तबादला नहीं होगा। इस तरीके के साफ तौर पर निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे। लेकिन देखना यह भी होगा कि क्या ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट के इन निर्देश पर अमल करती है या नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि आप उन पर कार्रवाई कर सकते हैं लेकिन कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं की जाएगी, कोई दंड उन्हें नहीं दिया जाएगा, कोई तबादला उनका नहीं होगा। ये तमाम चीजें सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई थी। लेकिन जैसा कि डॉक्टर्स अपनी डिमांड रख रहे हैं, जो आंदोलनकारी डॉक्टर्स हैं उनकी अपनी मांगे हैं। उन्होंने कहा है कि हमारी मांगे पूरी नहीं होने के कारण हम काम बंद रखेंगे। हमने राज्य सरकार को कोलकाता पुलिस आयुक्त, स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक और चिकित्सा शिक्षा निदेशक को पद से हटाने की मांग की थी। यानी डॉक्टर्स की अपनी शर्त थी। उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि हम 5 बजे तक काम पर लौटें तो हमारी शर्त यह है कि तुरंत 5 बजे तक कोलकाता पुलिस आयुक्त, स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक और चिकित्सा शिक्षा निदेशक को इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्हें पद से तुरंत हटाया जाए 5 बजे तक और उसके बाद ही हम काम पर लौटेंगे या हम आपके लिए चर्चा के लिए तैयार हैं आपके साथ। लेकिन उनकी बातें, उनकी मांगे नहीं मानी गई, जिसको लेकर यह बड़ा टकराव अब ममता सरकार और डॉक्टर्स के बीच पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के इस आर्जिकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में देखने को मिल रहा है। और इस तरीके से लगातार कोलकाता में ममता सरकार के खिलाफ डॉक्टर्स का यह धरना प्रदर्शन जारी है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।